सभी उद्योजक मित्रों का ट्रांसफॉर्मेशन की ओर से स्वागत। हमने ये जो सीरीज शुरू की है, एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमई डोंट नीड मेंटोर्स, व्हाट दे नीड इज इम्प्लीमेंटर्स। ये सीरीज फोकस्ड है कि हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रमोटर्स को सिर्फ अवेयरनेस ना दे, बट कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स दे जिनके थ्रू वो जो इतने सालों का गैदर किया हुआ नॉलेज है या उनका खुद का रिफाइन किया हुआ विजडम जो है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सके, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके, और ताकि जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो भी उनके होने की वजह से जो वैल्यू डिलीवर हो रही है वो वैल्यू कंटिन्यूअस डिलीवर हो। और इसी थॉट को माइंड में लेके ये सीरीज शुरू की गई है। एंटरप्रेन्योर्स डोंट नीड मेंटोर्स, व्हाट दे नीड इज इम्प्लीमेंटर्स। इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। हमने अलग अलग फैसेट को टच किया कि नॉलेज किस तरीके से हार्मफुल हो सकता है इफ इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करने से रोकती है, और ऐसे क्या स्टेप्स हमने लेने चाहिए, या ऐसे क्या पिटफॉल्स जो है वो हमने अवॉइड करने चाहिए। इसके बारे में हम पहले 3 एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो। ये सारे वेबिनार्स हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू अपॉइंट और हाउ टू रिक्रूट इम्प्लीमेंटर्स एंड हाउ टू डेवलप a team which can help us implement things. So, welcome again, and let's get into the subject. Okay. Now, before we get into the structure or topic of how do I appoint, how do I recruit, and how do I develop this team of implementers, let's understand why it is important. And I want to start with one question. मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहूंगा, and I would expect the answer in the chat box. So, for any business or for your business, there are two aspects. One is today of the business, and second is tomorrow of the business. Today of the business is where I take care of things which are required to run these operations, to deliver the value, to create the value. I do certain things. एंड ऑल दीज थिंग्स आई कैन कंसिडर एज ऑपरेशंस। एंड वो जो मैं डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस करता हूँ, विच टेक्स केयर ऑफ माय रेवेन्यू, कैश फ्लो, विच ब्रिंग्स मी प्रॉफिट। एंड बिकॉज आई हैव दिस प्रॉफिट आई कैन टेक केयर ऑफ टुडे। I can pay the salaries, I can pay my vendors, I can take care of my overheads. All these things can be done. And for me to do these things, I need to take care of today. And then there is tomorrow. Tomorrow is about what next market that I'm going to enter, what is the next product that I'm going to launch, what is the next territory that I'm going to get into, what is the next innovation that I'm going to do. Now, I want to ask, this is going to be a very simple question to all of us. The question is, who is responsible for the tomorrow of my business? If I'm an entrepreneur, I have two objectives. One is to take care of today, and second is to take care of tomorrow, or envisage the tomorrow. Be ready for tomorrow. Who's going to be responsible for my tomorrow? So there are multiple answers. Mr. Gaur is saying team. Vishruti is saying you, means entrepreneur himself. And then there is a balanced answer that is by Mr. Mahesh Khatke, which is we. So there are three different answers. Prashant Kashikar is saying self, means entrepreneur. So team, me, we together, self. The only person who will be asked question about tomorrow is you, the entrepreneur. Your team, your vendors, your customers, everybody is looking at you to answer this question, that what is going to happen to this business,
in next 5 years, next 3 years, next 7 years, next 10 years. So when we look at today and tomorrow, if we principally agree that my business has today, which needs to be taken care of to sustain, to survive, I need to do certain things which are taken care of today. And for this business to leave a legacy, to have continuity, I need to build, create the future. The creation of future is not a reactive activity. It's a very proactive activity. If I am not proactive about thinking, visualizing, envisaging the future, then I'm just reacting to what is happening to me and my business. My situation is like वो नदी में गिरे हुए पत्ते की तरह सिचुएशन है, जिसकी दिशा वो पत्ता खुद डिसाइड नहीं करता। नदी का जो प्रवाह है वो डिसाइड करता है कि ये पत्ता कहाँ जाएगा। हम में से कई लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, बट इन रियलिटी आप जिस किसी इंडस्ट्री में हो, जिस किसी इकोसिस्टम में हो, जिस किसी वैल्यू चेन में हो, हम में से कई लोग उस वैल्यू चेन के, उस पूरे इकोसिस्टम के, उस इंडस्ट्री के, उस प्रवाह के अंदर सिर्फ बहते जा रहे हैं। I want to have control of my future, but I'm so much busy with my present that though having this understanding that I need to have control of my future, or at least I need to envisage, I need to be proactive about it, I need to have some strategy. I'm going to operate out of some choices that I'm going to make, where I'm going to be in next 5 years. I have this thought, but I get so much consumed, I get so much overwhelmed with today that thinking about tomorrow looks like a luxury. But in today's fast-paced environment, I cannot be in a reactive mode. मैं reactive mode में नहीं जी सकता, मेरा बिजनेस रिएक्टिव मोड में नहीं जी सकता। आई नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव ऑफ टुमारो, बैलेंसिंग टुडे एंड टुमारो, बैलेंसिंग बिटवीन दीज टू। And as an entrepreneur, if I am thinking of, or I have to balance today and tomorrow, then I cannot depend on my personal abilities or personal skills. मैं इन चीजों को अपने मसल पावर पे नहीं खींच पाऊंगा, अपने पर्सनल मसल पावर पे मैं टुडे और टुमारो को नहीं बैलेंस कर पाऊंगा। ईच वन ऑफ अस, हमारी मसल पावर की, हमारी मेंटल पावर की, हमारी काम करने की क्षमताओं की एक लिमिटेशन है। एज ए ह्यूमन वी हैव दीज लिमिटेशंस, और जब जब हम हमारे लिमिटेशंस के बियॉन्ड कुछ खींचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तब हम सिस्टम की यूज करते हैं। सिंपल एक वजन है, हमें उठाना है, हमारे मसल पावर के बियॉन्ड है। द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी यूज इज वी यूज पुली, राइट? पुली का सिस्टम यूज करते हैं, और उस सिस्टम को यूज करके मेरी कम से कम शक्ति का यूटिलाइजेशन करके मैं ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकता हूं। मैं लेवरेज का यूज करता हूं ताकि मैं कम से कम शक्ति का यूज करके ज्यादा से ज्यादा वजन उठा पाऊं। और अगर मैं फिजिकल रेल्म में अगर सिस्टम का यूज कर रहा हूं, तो मेरे बिजनेस में, मेरे इंस्टीट्यूशन में, अगर मुझे मेरी क्षमता के बियॉन्ड कुछ करना है, मेरी क्षमता के लिमिटेशंस को तोड़ के कुछ करना है, देन आई नीड टू हैव सिस्टम। अब जब टुडे और टुमारो की बात कर रहे हैं, तो यहां भी दो सिस्टम्स आती है। एक सिस्टम को कहेंगे हम अल्फा सिस्टम, अल्फा सिस्टम विच टेक्स केयर ऑफ माई टुडे। और कई बार इस अल्फा सिस्टम से टुमारो का एक्सपेक्टेशन करना, कई बार हम करते हैं। जैसे हम में से किसी ने कहा कि टीम विल टेक केयर ऑफ टुमारो। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, एज एन एंटरप्रेन्योर you have been given certain endowments. By just being an entrepreneur, you have those gifts. Those gifts are not with your team. 10 लाख कमाने वाला एंटरप्रेन्योर और 1 करोड़ कमाने वाला एम्प्लॉय, हमेशा डिफरेंस रहेगा। There are certain things that comes to you as an entrepreneur naturally. These are natural gifts. जैसे एक माँ को, जब एक फीमेल को जब बच्चा होता है ना,
There are certain things that comes very naturally to her as a mother. The birth of mother brings along a lot of natural endowments, natural gifts. In the same way, जब एक entrepreneur एक enterprise को जन्म देता है, certain things come very naturally, which are not there. You might have very intelligent employees, very skilled employees, but certain things that comes to you very intuitively will never be there. And that's why, as a founder, as an entrepreneur, our responsibility is very, very, very of a very great stature, very high. And we are the ones who are supposed to balance this today and tomorrow. And I need to have these two systems, alpha system, which will take care of today, and a beta system, which will envisage tomorrow, which will be proactive. The science of sustainability is very simple. Science of being there for perpetuity, science of being there for hundreds of years, the science of being there for generations to generations is very simple. It is all about keeping your relevance with your environment. If your business can keep its relevance with the marketplace, your sustainability is dependent on how relevant you are to the market. The market is constantly changing. As the market is constantly changing, to keep my relevance to the marketplace, there has to be a system within the organization, which we call beta system in transorganization, which has the ability to go in the market, observe the changes, make sense of the things which are changing, and bring that sense back into my alpha system, and then transform my alpha system in a way that it is relevant to the outside world. So there is the outside world and there is my inner world, which is my business, my enterprise, my resources, my processes, my infrastructure, my key people, my key steps. That's my inner world. My inner world needs to be transformed in a way that it has a relevance to the outer world, to the outside. If you look at your role carefully, intuitively what you are doing, you're going for networking, you're coming for such webinars, you go to seminars, you go to exhibitions, you go to vendor's office, you go to customer's office. What you are doing, you're observing the world around. And when you're observing the world around, what you are doing is you're making sense of what is happening. And then you bring that sense and come to your alpha system, and you want that alpha system to get transformed, to bring that relevance. And yahan gadbad ho jata hai. If I expect my alpha to transform itself, it's not possible. Because alpha is completely focused on today. And we also want them to be focused on today, because if they are not focused on today, they will not be able to create the value. There's a mandate to alpha system of creating certain amount of value, because that certain amount of value is going to bring that revenue that's going to help me survive. It is going to bring that profit which is going to help me get that next crane, that next ERP. So alpha, I expect them to generate that value. And while they are generating this value, if I expect them to also work on being relevant, then it is not justified. We may say they can do multitasking. We may say a lot of things. But in reality, what is our experience? Our experience is whenever they have been given such thing, they will do either or. If they start focusing on the beta activities, which is the tomorrow activities, then there are a lot of messes that are happening in my alpha. And if they are completely on the alpha, then who's working on beta? Who's working on tomorrow?
And we as entrepreneurs needs to come out of this mindset that my alpha will take care of my beta. Beta system needs a very different mindset, skill set, and tool set. Alpha is a very budgeted kind of activity, very standardized, very much process oriented, and also target oriented. There's an annual target, right? And then there's an annual budget for it. There's an available cost in which they have to manage. Because if they go beyond available cost, then that additional amount is going to come from my profits. So expecting alpha team, alpha system that is taking care of my today, which is doing that production, which is delivering that service, they have to be focused on making sure that the value is created, because the payment that I am going to get as an enterprise will be for the value. The basic law of economics. You get paid for the value that you create in the marketplace. So they have to create that value. They have to be focused on creating that value. As an entrepreneur, as we discussed in the previous webinar, that we have to move from being smart to be wise. Having that distinction in mind that there is somebody who's responsible for my alpha, making sure that those standard processes are implemented, that daily, weekly, monthly, quarterly target is achieved, the target of sales, target of production. Because when I do that, that's where I'm creating the value, and my enterprise is getting paid for that value. I can't distract them, because in beta, it's a very open-ended thing for you to envisage the future, to make sense of things happening around me. There are things happening at your vendor level. There are things happening at your customer level. There are things happening at your competition level. There are things happening at industry, government, in society. It's not about only a particular thing कि थोड़ा industry पे ध्यान देंगे. The future is combination of many variables, and these variables are changing at a maddening pace. So the skill set, tool set, mindset required for a beta system is far very different from the skill set, mindset, and tool set required for alpha. In the name of multitasking and lot of other things, we can't mix these two things. And today, you are the beta system of your enterprise. You are the only person who's going to answer this question, where this enterprise is going to be in next 5 years. Your people, they are looking at you. क्या बोलते हैं उसको, आशा भरी नजरों से वो आपकी और फ्यूचर के लिए देख रहे हैं. जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आप में से कई लोगों के मन में ये भी चलता होगा, बिकॉज वो रियलिटी है. यार कुंदन, आप फ्यूचर एनविसाज करने की बात कर रहे हो, मैं तो टुडे में ही अटका हुआ हूं. आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद टुडे, द वैल्यू विच नीड्स टू बी क्रिएटेड, विच यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा. आई एम द अल्फा. तो एक साइड पे तो हम कह रहे हैं कि अल्फा बीटा को मिक्स मत करो, और मैं बीटा हूं, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं अल्फा में ही बैठा हूं. आई एम द वन हु इज द सेक्रेटरी फॉर माय प्रोडक्शन मैनेजर, फॉर माय सेल्स हेड. यही है ना सिचुएशन. जब मैं अब अल्फा में बैठा हूं, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ बीटा? जब चीजें बड़ी एंटेंगल हो जाती है ना, एंटेंगल्ड हो जाती है, तो उसके साथ रेसलिंग करके कुछ नहीं होगा. जितना रेसलिंग करेंगे उतनी एंटेंगलमेंट बढ़ेगी. तो एक एक धागा, एक एक छेड़ा पकड़ के उस एंटेंगलमेंट को निकालना पड़ेगा. आई अंडरस्टैंड. अगर आप एसएमई हो, आप मानो ना मानो, अगर आप स्मॉल एंड मीडियम या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में अगर आप आ रहे हो, तो एंटेंगलमेंट है. ठीक है, 20 साल का रिसर्च है. अब मैं मानू या ना मानू, मेरा एंटरप्रेन्योर बैठा तो अल्फा में है, मेरा इंडियन एसएमई बैठा तो अल्फा में है. आयरनी क्या है ना, मैं कहे 13 साल से ना
एटलीस्ट रोज 2 एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा हूं ऑन डेली बेसिस, और उनसे मैं माइंड लेवल पे बातें नहीं कर रहा हूँ, सोल कनेक्शन स्टैब्लिश करके बातें कर रहा हूँ। तो कई चीजें अंदर से समझ में आती है, वो बोले या ना बोले। अच्छी बात क्या है, मेरे एंटरप्रेन्योर्स जो है ये सारे माइकल शूमाकर है, पीपल विथ लॉट ऑफ zeal एंड पैशन टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू। ये माइकल शूमाकर जो है ना मेरा, इसको फॉर्मूला 1 जीतना भी है। प्रॉब्लम इतना ही है कि वो बैठा हुआ है मारुति में और काम करना चाहता है फेरारी का। When I say Maruti, I'm talking about the organization. उस entrepreneur के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मारुति है। अब इस मारुति को फेरारी में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि ये माइकल शूमाकर जो है वो उसके जिंदगी की जो भी फॉर्मूला 1 है वो जीत सके। और इसीलिए उसे मेंटर्स की जरूरत नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटर्स की जरूरत है, ताकि वो अल्फा से निकले। Fortunately, knowledge is not a problem in today's world. Rather, it has become a problem. Overdose. व्हाट्सएप के एक मैसेज में भी आपको पीएचडी का नॉलेज मिल जाएगा। जोक्स अपार्ट, बट इन रियलिटी anything that you want to know is available with generative AI, with all these chat GPTs and all these AI tools. You having very no knowledge of architecture, with simple measurements, you give a brief and you get this whole drawing of structure. Sit with the architect, what he will give and what this tool has given, you'll find so much of similarity. So knowledge is not a problem. And as an entrepreneur, naturally you have that intelligence of your business. You have ideas. You don't need any more ideation guys. You need somebody who will take care of today, who will make sure that execution is done with a finesse, so that you can get out of that overwhelming situation of alpha. Of course, you will monitor it, but you have a spare time so that you can invest that time into beta and create the future. Because ultimately, you are the only person who is accountable for the future. If you leave this world without doing your job of creating a very strong alpha and beta, envisaging that future, creating a framework for the next generation, that what you need to refer when you're looking at future. If you leave this world without doing that, you will be doing injustice to your business. That would be the greatest blunder that a founder can do. Leave the world without institutionalizing his thought, because your thought is the seed for the value that this enterprise is going to create in the future. Thomas Alva Edison, the person who invented bulb, institutionalized his thought of invention in the form of General Electric Company, GE. It's been hundreds of years that Thomas Alva Edison has gone. There have been many CEOs who have come and CEOs who have gone. But the seed of thought remained in the organization, and that's where GE is one of those giants. If you fail to do that, you're doing that injustice to your company. Making sure that you have alpha in place, which is taking care of today, and building that beta, which will envisage, which will be proactive about the organization's future. Now, considering this, now let's talk about how do I make sure that I have a team of executioners, I have team of implementers, I have team of people who have accountability, who have ownership, who have this ability to close things. If something is given to them, they need to have this closing ability. अगर वो क्लोज नहीं करेगा तो नींद नहीं आए. How do I build that team? In our life, there's always a go-to man, right? कुछ भी हुआ, then we always have that somebody who we feel that अरे इसके पास जाएगा ना solve हो जाएगा. When do I leave that position and my alpha system becomes that big brother where I know अरे दिया है ना हो जाएगा? Automatic नहीं होगा. I will have to put
effort. I know things are entangled. I can't wrestle with it, but by step, I need to untangle this and have that mindset first. First, to start with, have that mindset that in my enterprise, there's an alpha system, a very budgeted kind of system, very standardized, which is taking care of my today creating value, which will bring revenue and profit. And then there's a beta system, which is looking at the outside world, observing things, getting inputs, making sense of it. Now, for this, for me to have these executioners, let's start a topic today. Today we'll be able to start and do little brush up or understand it in a holistic manner. And by every session which is coming, every episode that will come ahead, we will take one component of it, and then we'll get into details of that component from the perspective of not knowing, but from the perspective of karne ka kya. Each component we will pick up and we'll see for this particular component करना क्या होता है. Once I know करना क्या है, I know entrepreneurs को एक बार करना क्या है पता चल गया वो कर देते. So today we are going to look at this whole aspect of talent, the people, those who are going to have this closing ability, accountability, ownership, having that execution finesse. इसको अभी थोड़ा सिस्टम थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग? कैन समबडी पुट ऑन चैट बॉक्स सिस्टम थिंकिंग क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग? सिस्टम थिंकिंग इज अ होलिस्टिक अप्रोच, set a structure and generate around it. It's a holistic approach to understanding problems by examining the interconnections, relationships, and interdependencies between a system's component and its environment. And it's not about focusing on isolated parts. As an entrepreneur, हम कई चीजों को आइसोलेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो सेल्स पे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एफिशिएंसी पे. एंटरप्राइज business is an interconnected, interdependent system. And this interconnected, interdependent system, there are many components which are interacting with each other. And then there's a relationship between each component. And any calibration or correction at any component will have impact on the other components. And other components are either going to respond or react to that calibration. And that's why when I'm calibrating one aspect of my whole system, I need to be proactive about how it is going to impact the other components. I need to have that anticipation that with this calibration in marketing, this impact is going to be on finance, this impact is going to be on sales, this impact is going to be on my stores, this impact is going to be on my production. And how do I mitigate proactively these impacts or do certain proactive actions so that there is no adverse impact? And that's why we need to adapt. We need to adopt to this thought of system thinking. System thinking is for getting desired result. That's Baban Magdumji is saying. Okay, yes, it is there to get desired results. Okay, but these desired results will come when I have this holistic approach. Now, for people also, there has to be a very holistic approach. Now, when I'm going to share a framework with you now, okay, when you look at this framework, there is possibility that many questions might arise. अरे यार अच्छे लोग मिलते नहीं है, अच्छे लोग हमारे यहाँ नहीं आते हैं, इनको कैसे लाए, अच्छे लोगों के लिए जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए आज वो है नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे बिजनेस की इकोनॉमी ऐसी है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. There will be many questions.
with this thought of system thinking, and with this thought of I'm not going to wrestle with it, but I'm going to work component by component, and I'm going to work step by step, and I'm going to work as an engineer who's engineering the whole enterprise. If I have this approach of Shraddha and Saburi, faith and patience, building a sustainable enterprise, building a business of legacy is a work of lot of faith and patience. Amul, the taste of India, कल कल शुरू किया, आज बन गया ग्लोबल ब्रांड? नहीं ना। हाँ, पहला थॉट ये कि मुझे अमूल बनना है क्या? Do I want to become that business which has legacy, which has value? That's the first thought. कि मैं आज भी एंटरप्रेन्योर का चोला ओढ़ के एम्प्लॉय जैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, चार पैसे जरा बैंक में आ जाए, ये थॉट से एंटरप्राइज नहीं बनी, सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन नहीं बनी. I need to have that faith and patience that I'm building something of value for this world. In the byproduct, I will get everything that I desire. The world will never give you what you desire. The world will never give you what you desire. But nobody can stop you from getting or achieving what you deserve. So let's focus on becoming deserving. What I'm desiring will come as a byproduct. मैं जिस चीज के लायक हूं ना, वो पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता. So with this thought, with this holistic thought, with this thought of system thinking, let's get into that model that we're going to follow for having that team, which will take care of my alpha, and then building a team which will take care of my beta. In a way, I'm saying having two systems, one taking care of my today, and second is proactive about my tomorrow. So let me share PPT. Is it visible, Rajesh? At Transgonization, we call this system as a talent factory model, a model which creates a talent factory within my organization. अब ये सोचना बंद कर दो मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं forget it. Understand the system. We may not be able to do everything at a time. We might take baby steps. I'm okay taking baby steps when I have faith and patience. श्रद्धा और सबूरी नहीं है ना, फिर मुझे एंजाइटी है. मराठी में कहावत है, आज तूप खाने से कल रूप नहीं आता है ना. रूप के चक्कर में बहुत ज्यादा तूप खा लोगे, फिर परेशानी होगी. घी, तूप मतलब घी. So let's look at this model. The first component of this model is called sourcing. Sourcing is not a new thing for us as entrepreneurs. हमारे कंपनी में मशीन में अगर एक नट भी लगता है ना, नट, या एक कील लगती है, या एक वेल्डिंग रॉड लगता है, we are sourcing it. And for sourcing it, we have parameters. Parameters होते हैं ना, कि नट ये मटेरियल का होना चाहिए, इस साइज का होना चाहिए, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. We have parameters. Now the sourcing parameters that we have for such a small component, when we are taking people in the system, what kind of parameters we have? अब कई लोग कहेंगे, अरे कुंदन, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमारे यहाँ तो लोग आते ही नहीं है. I'm not talking about sourcing and having parameters because yesterday I read some book, but I'm operating in this industry for last 20 years with different contexts and different companies and different industries. And with patience and with faith, we have cracked this. आज आपने सोर्सिंग सीख लिया तो कल आपके पास बड़ी लाइन लग जाएगी, ऐसी बात नहीं. टू बिल्ड इट साइंटिफिकली. लोग नहीं है ऐसा भी नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारी आवाज इस देश में उठती रहती है, एंड रियलिटी है देयर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल. सो अवेलेबिलिटी इशू नहीं है. एम आई एबल टू रीच आउट? And if I'm able to reach out, am I able to evaluate?
Do I have those parameters in place to evaluate? And even if I evaluate, what's next? So the moment I have this holistic approach and I build component by component in a year or year and a half or two, I'm able to build this input machine, which is giving me right talent at right time at a right cost. Right talent at right time at a right cost. So first component is sourcing, which we are going to get in detail today. But before we get into that, let's understand the whole model. After sourcing, there is a process of absorption. I need to absorb that input of a talent or a candidate or an employee who has come into the system. अपने रंग में रंगाना पड़ेगा. तो पहले सोर्सिंग में देखना पड़ेगा कि भाई रंग में रंग सकता है क्या. काली बिल्ली को सफेद बिल्ली बनाने का चक्कर में मत जाओ, नहीं बनेगी. कितना भी पेंट लगाओ वो निकल जाएगा, वो काली बिल्ली है ना. सो सोर्सिंग में इस बात का थॉट दिया गया होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन होगा क्या. आपके कंपनी का एक रंग है, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, दुनिया देख पाती है. मखदूम साहब की कंपनी का एक रंग है, उनके हर एक्टिविटी में वो रंग छलकता है. या मैं लोगों का रंग वंग नहीं बोल रहा हूं. लोगो मतलब लोग नहीं, लोगो उसका रंग नहीं बोल रहा हूं. आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर्स, आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम से एक रंग बना हुआ है आपका. उस रंग में वो रंगना है. पहले स्किल आप दे दोगे, आप स्किल दे दोगे. यू हैव मास्टर्ड द स्किल, यू विल बी एबल टू गिव दैट स्किल. लेकिन रंग में रंगने की एबिलिटी, क्षमता है क्या? और फिर रंगाने की प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन में. यार रंग उंडेल दिया तो नहीं होगा ना. एब्जॉर्प्शन को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसको मेरे रंग में मैं एब्जॉर्ब करा. एब्जॉर्प्शन के बाद है ट्रेनिंग, जहां आप स्किल की बात करो. 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा आ गया ना, ट्रेनिंग तो आपको देनी ही है. अरे नहीं नहीं, 10 साल वही काम कर रहा, आता होगा. Don't get into that assumption, because every skill, when it gets into your context, it gets calibrated. स्किल वही होगा, अकाउंटिंग का स्किल होगा, बट आपके रंग में रंगने से उसके अंदर कैलिब्रेशन हो जाता है. आपके कॉन्टेक्स्ट में आने से आपका एक तरीका हो जाता है. अब वो बोले 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आया, मुझे ट्रेन तो करना ही पड़ेगा मेरे तरीके पे. वही चीज है, वही सेल्स कॉल है, लेकिन मेरे तरीके में, मेरे सेल्समैन के आंख में डॉलर का साइन नहीं दिखता है, बल्कि केयर दिखती है. अब वो जहां से आ रहा था, वो सेल्स ओरिएंटेड कंपनी हो सकती है, ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है, और वहां पे पैसा ही पैसा मैटर करता है, तो उसके आंख में पैसा दिखेगा. अब उसके डॉलर साइन जो उसकी आंख में दिख रही है कस्टमर को, उसको चेंज करना पड़ेगा केयर के साथ. उसके उस ट्रांजैक्शनल बिहेवियर को रिलेशनशिप बेस्ड सेल और कंसल्टेशन बेस्ड सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ट्रेनिंग तो मुझे करनी है. ट्रेनिंग के बाद की जो एक कंपोनेंट आएगा, स्टेप आएगा, दैट इज डिप्लॉयमेंट. सोर्स किया विद द पैरामीटर्स, एब्जॉर्ब किया मेरे कल्चर के रंग में, ट्रेन किया उन्हीं स्किल पे बट मेरे कॉन्टेक्स्ट में, और अब डिप्लॉय करूंगा. डिप्लॉय मतलब वो जो भी डिपार्टमेंट हो, जिस फ्लोर पे हो, उसको डिप्लॉय करना है. किसी और कंपनी में डिप्लॉय, उसके जॉब पे डिप्लॉय करना है. इट नीड्स टू बी अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस. सुबह आया, रिसेप्शन में बैठा, फॉर्म भरा, दोपहर तक एचआर ने सारे डिपार्टमेंट घुमाए, 4 बजे तक टास्क दे दिया, लग जा वही काम पे. डिप्लॉयमेंट इज द component where you are refining the expectations. आपने जब उसको सोर्स किया था ना, तभी कुछ एक्सपेक्टेशन बताए थे ऑन अ वेरी सरफेस लेवल. आपको ये सैलरी मिलेगी, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको ये पीएफ मिलेगा, आपकी इतने दिन की छुट्टी होगी, सिक लीव मिलेगी, 4 बार चाय मिलेगी. आपने
उस चीज को मेरी सरफेस लेवल पे किया। अब आएगा पॉइंट जहां पे आप डिप्लॉयमेंट स्टेज में, क्योंकि अब आप कुछ समय गुजार चुके हो उसके साथ, यू हैव अंडरस्टूड आपके सोर्सिंग और एब्जॉर्प्शन में से जो चीजें निकल के आई है उसमें से क्या चीजें सही हो गई, क्या चीजें गलत हो गई। हो ही सकता है ना, होता ही है। अब आपको यहां कैलिब्रेट करना पड़ेगा। क्या आपने सोचा था अरे सीवी लेवल पे कितना इवेलुएट कर लोगे, तो आपको जो खामियां दिख रही है, जो आपको फर्दर डेवलप करनी पड़ेगी या करेक्ट करनी पड़ेगी, या कुछ जो अच्छाइयां दिख रही है जो शायद इवैल्यूएशन स्टेज में नहीं पता चली थी, कुछ इनिशिएटिव्स दिखे हैं, कुछ पॉजिटिव बिहेवियर्स दिखे हैं, अब इनको कैलिब्रेट करके डिप्लॉय करते समय देयर हैज टू बी क्लैरिटी ऑन टू क्वेश्चंस। One is, what is that this enterprise expects from you on monthly, on quarterly, and on annual basis? And second clarity is, how will you be evaluated on these expectations? हमारा evaluation का method क्या होगा? This is what we are going to do in the deployment stage. Once deployed, the next step is performance management, monitoring. आपने डिप्लॉयमेंट स्टेज में एक्सपेक्टेशन, नंबर्स, टाइम, ये सारे एक्सपेक्टेशंस ऑब्जेक्टिवली लिख दिए हैं। तो आपने उसका जो प्री वर्क है वो डिप्लॉयमेंट में किया। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको उसी शीट के बेसिस पे, वील सी सम एग्जांपल्स टुडे, उसी शीट के बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। मेरा ये मानना है कि पीपल डोंट फेल, सिस्टम फेल्स। सेल्समैन को अगर रोज मॉनिटर नहीं करोगे ना, वो दोपहर में लंच के बाद में किसी टी स्टॉप स्टॉल पे चाय की चुस्की मार के सिगरेट पीते, दो टांगे टेबल के ऊपर डाल के बैठ जाएगा। पीपल नीड मॉनिटरिंग। आफ्टर मॉनिटरिंग you need to give feedback, you need to reward right things, and things which are not right you need to give feedback. And if it is not working, after multiple feedbacks, you put people in performance improvement process, or you take that hard call, and it is going to happen. हम reality से नहीं भाग सकते। There will be few recruits which will come in the system, work for some time, will not be able to perform. But if I have deployment charter and if I have performance management charter in place, my calls will be data based and at right time. फिर कई बार एंटरप्रेन्योर्स का क्या हो जाता है, अरे यार 6 महीने की सैलरी दे दी, अब क्या करूं, देखता हूं ना, और 2 महीने रख के कुछ कर लेगा। अब रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। अब जितना उस पर इन्वेस्ट किया है उसका आरओआई निकालने के चक्कर में नॉन परफॉर्मर भी वो पड़ा रहता है सिस्टम। आफ्टर दिस यू हैव अ कंपोनेंट कॉल्ड एंगेजमेंट, और ये सबसे मिसअंडरस्टूड कंपोनेंट, सबसे मिसअंडरस्टूड कंपोनेंट। Even HR professionals, I'm sorry, I'm not against them, but there are many HR professionals who doesn't understand the meaning of engagement. आप पूछ लो भाई एंगेजमेंट में क्या करोगे, नहीं नहीं सर हम रक्षाबंधन करेंगे, दिवाली करेंगे, हम गरबा खिलाएंगे, और हम बॉस, दैट्स नॉट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का सिंपल एग्जांपल देता हूं। मखदूम सर को अगर मैं अभी यहां पे एक गणित देता हूं, 4+2 - 1, जवाब दे पाएंगे? 4+2 6 -1 5। मखदूम साहब को किसी भी फैकल्टी को एंगेज करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी ऑटो आंसर। एंगेजमेंट वो है जब उस व्यक्ति की फैकल्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। वही मैं अगर कहूं 4325 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 530, अब शायद दिमाग को एंगेज करना पड़ेगा, हाथ को एंगेज करना पड़ेगा, एक्सेल शीट को एंगेज कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू इन अ डिफॉल्ट मोड, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू एंगेजमेंट कंपोनेंट ऑफ टैलेंट फैक्ट्री, मैंने उस व्यक्ति को सोर्स किया, एब्जॉर्प्शन किया, ट्रेनिंग किया, डिप्लॉय किया, उसका परफॉर्मेंस मैनेज किया, उसको रिवॉर्ड दिया, उसको रिकॉग्निशन दिया।
अब मैं उसको कुछ ऐसे टास्क, क्योंकि इफ ही इज गेटिंग रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इट मींस सर्टेन थिंग्स ही हैज स्टार्टेड डूइंग इन अ वेरी डिफॉल्ट मोड, स्किलफुल हो गया वो। अब उसको रात को 2 बजे उठा के वो वाला काम तो वो कर लेगा। अब उसको मुझे उस डिफॉल्ट मोड से हिलाना है, उसके फैकल्टीज को एंगेज करना है। तो आई विल गिव हिम नेक्स्ट लेवल टास्क विदाउट गिविंग नेक्स्ट लेवल पोजीशन। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बढ़िया सेल्समैन आ गया, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग टारगेट्स अचीव कर रहा है, बना दो उसको सेल्स मैनेजर। नहीं, पहले सेल्समैन स्टेज पे ही सेल्स मैनेजर के कुछ टास्क दे दो। पोजीशन एंटाइटल्ड नहीं है अभी। एंड ऑब्जर्व करो कि कैसे कर रहा है। उसके रोजाना के कामों के सिवा जो नेक्स्ट लेवल के काम है, वो जब देता हूं, डिफिकल्ट काम देता हूं, तो उसकी फैकल्टीज एंगेज हो जाती है, उसकी लर्निंग की फैकल्टी आ जाती है, उसका इंटेलिजेंस आ जाता है, उसका एग्जीक्यूशन आ जाता है, उसका प्लानिंग का स्किल आता है, उसका मल्टीटास्किंग का स्किल आता है, और आपको ऑब्जर्वेशन का पीरियड मिल जाता है। इफ ही परफॉर्म्स वेल, देन यू रिसोर्स हिम। तो जो सोर्सिंग से शुरू हुआ था वो पहुंच गया रिसोर्सिंग में। नाउ दिस पर्सन हैज बिकम अ रिसोर्स फॉर यू। यू आर रिसोर्सिंग हिम फॉर द नेक्स्ट पोजीशन by engaging him with greater work, with better work. And if he performs, he gets resourced. And he doesn't, he continues with what he is doing till the next cycle comes. And after resourcing, we again start the cycle. अब नई पोजीशन का एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट पोजीशन की ट्रेनिंग, उसके एक्सपेक्टेशंस थ्रू डिप्लॉयमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, उसके बेसिस पे रिवॉर्ड ऑफ फीडबैक, और अगले लेवल की एंगेजमेंट। इफ सक्सीड्स, रिसोर्स। इफ सक्सीड्स, रिसोर्स। डजंट सक्सीड, let him be there in engagement. Now this is the cycle that I need to do with my people. And over the period of time, when this cycle is established, I can say I have a talent factory. This talent factory will produce the implementers, the people with closing ability, the people with ownership, the people with accountability, and a team that can be considered as your alpha system. Is making sense? We will go in each component in detail. Every episode. बेबी स्टेप्स लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई घाई नहीं। श्रद्धा सबूरी है ना? हाँ, डाल दो जेब में श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी तभी रख पाओगे जब आप बहुत इंस्टीट्यूशनल, एक इंस्टीट्यूशन बनाने की सोच रहे हो। तो थोड़ा 50 करोड़ जरा जेब में आ जाए, यहाँ वहाँ एक मेरी एक छोटी सी फार्म हाउस हो जाए, और 2-3 फ्लैट में इन्वेस्ट कर लूं, ये थॉट है, तो फिर नहीं, फिर श्रद्धा और सबूरी नहीं साथ में रहे, नहीं रहे। दैट थॉट इज नॉट रॉन्ग। फार्म हाउस, बेटे के लिए एक फ्लैट, बेटी के लिए एक फ्लैट, दैट्स नॉट रॉन्ग, there's nothing wrong in it, but that's not the objective, that's byproduct। उस पर फोकस करोगे तो शायद वो आएगा भी नहीं, श्रद्धा सबूरी भी निकल जाएगी, और हर 3 साल के बाद हम मिलेंगे तो वही वही बातें करेंगे। है ना? आपने में से कितने लोग यहाँ बैठे हुए जिनको 2-2 3-3 साल में एक बार मिलते हैं, भैया क्या है, नहीं वही है सर। ओके, अभी आज हम इसका जो पहला कंपोनेंट है उसको देखेंगे, सोर्सिंग कैसे। अब सोर्सिंग की जो शुरुआत है ना, पहला ही स्टेप है having relevant job description। relevant जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना इंजीनियरिंग है, गूगल को बोलना नहीं है गिव मी अ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर अकाउंटेंट, ये आ गया प्रिंट होके, वही दे दिया मैंने एजेंसी को, एजेंसी ने कुछ कुछ लोगों को उठा के भेज दिया, मैंने रख लिया, अब मैं माथा पटक रहा हूं, "अरे, इसको तो आता ही नहीं है"। एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन इज इंजीनियरिंग। आज वो इंजीनियरिंग है। अब उस इंजीनियरिंग को करना है तो पहला ही जो कंपोनेंट आ रहा है उसको सुनने के बाद गड़बड़ है, कोई बात नहीं, उसको भी बनाएंगे। पहला कंपोनेंट है प्रोसेस इन्वेंटरी। सो लेट्स लुक एट इट। सो पहली चीज है पीपल प्रोसेस और पोजीशन प्रोसेस मैपिंग। ओके, सो व्हाट वी नीड, इन्वेंटरी ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। मुझे बात मान के चलना पड़ेगा, माय
एंटरप्राइज इज अ प्रोसेस हाउस. इट्स अ प्रोसेस हाउस, नथिंग एल्स. आप कुछ भी धंधा कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विसेज कुछ भी कर रहे हो, इट्स अ प्रोसेस हाउस. देयर इज अ इनपुट कमिंग इन, देयर इज आउटपुट एक्सपेक्टेड. आपके ऑफिस में मैं आऊं तो मैं इनपुट हूं. मैं जैसे ही अंदर आता हूं ना, मेरे ऊपर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है. रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, मतलब गुड मॉर्निंग सर, whom do you want to meet. हो गई ना प्रोसेसिंग शुरू. प्लीज हैव अ सीट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कप ऑफ टी और कॉफी और वाटर इज ओके. प्रोसेसिंग ही चल रही है ना. Everything that enters in your premise as a business is an input. This processing house is supposed to process that input so that expected output is generated, created, or expected value is created. So we need to have inventory of process. यहाँ पे हम assumption ले रहे हैं. कुछ एपिसोड्स के बाद हम प्रोसेस के ऊपर भी जाएंगे. प्रीवियस एपिसोड में हमने प्रोसेस के ऊपर कैसे 10 स्टेप प्रोसेस लिखनी है उस पर बात की है. अगर कोई नया है या आपको रिविजिट करना है, यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल, और एपिसोड नंबर 3 में आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट दैट प्रोसेस. एपिसोड 1, 2, 3 इज ऑलरेडी ऑन द चैनल. नैना, प्लीज पेस्ट द लिंक फॉर आवर चैनल. प्लीज गो एंड अभी वो इन्फ्लुएंसर जैसा बोलना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब, so that you are informed. Okay, good. So, inventory of processes. Then we need inventory of steps involved. So, her process key, there are steps. The technical skill required to perform the steps, behavioral style or personality type needed to perform that particular step, and your cultural non-negotiable, जो आपके वैल्यूज से आएंगे एज अ प्रमोटर. यू नो, मेरी कंपनी में ये होता है और मेरी कंपनी में ये होता नहीं है. वी डू दिस एंड वी डू नॉट डू दिस. योर नॉन नेगोशिएबल. सो कितने कंपोनेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. इन्वेंटरी ऑफ प्रोसेसेस, इन्वेंटरी ऑफ स्टेप्स, टेक्निकल स्किल फॉर ईच स्टेप, सॉफ्ट स्किल फॉर ईच स्टेप, बिहेवियरल स्टाइल और पर्सनैलिटी, एंड कल्चरल नॉन नेगोशिएबल. हम जाएंगे हर एक के डिटेल. इस पूरे डेटा को कोलेट करना हो, कैसे करेंगे? यहाँ पे एक सैंपल दिखाया गया. लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड केपी. यू नो, हम कह सकते हैं कि किशोर पवार एंड कंपनी, वॉट एवर वी टेक द नेम केपी. ओके. अब वहां ने उन्होंने हर प्रोसेस को नंबर दिया होगा. देयर इज अ यूनिक नंबर फॉर ईच प्रोसेस. Let's say it starts with KP1 and goes up to KP250 or 254. That 254 processes, I need to have that inventory. And then every process there is a name. Layout making process, bonnet dish end process, dish end making, dish end bottom, shell making, limpet. This is ये एक हमने example लिया हुआ है of a vessel manufacturer or fabrication company, है ना. तो देर आर 250 प्रोसेसेस जिसकी इन्वेंट्री है. हर प्रोसेस के अंदर अब उसमें से जो बॉटम डिश प्रोसेस है ना, बॉटम डिश एंड लिम्पेट फॉर्मिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ये 10 स्टेप है. मैं अभी एसओपी की बात ही नहीं कर रहा हूं. आप 10 स्टेप लिखो. अब 10 स्टेप क्या कहते हैं? मेकिंग, मार्किंग एंड कटिंग, bottom dish limpet forming, shell side limpet forming, setup on bottom dish, setup on main shell, bottom limpet root welding, nozzle setup, nozzle welding, pneumatic testing, air test. ये मेरे सीक्वेंस के 9 या 10 स्टेप्स हो गए. हर प्रोसेस के मेरे पास जब ये स्टेप्स लिख के आते हैं और मैंने अगर इसको एक वॉल पे डाला ना, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कामों की ट्रेसेबिलिटी एक वॉल पे मेरे आंखों के सामने आती है. अब ये फिजिकल वॉल हो सकती है या एक एक्सेल की वॉल हो सकती है, बट टू हैव कंट्रोल ओवर माय ऑपरेशंस, एवरी स्टेप which needs to be performed is on the paper.
अब में कुछ लोग कैसे इतना कौन करेगा? भैया रोज 1 घंटा करो, विद श्रद्धा एंड सबूरी हो जाएगा। करना तो हमें ही पड़ेगा भैया, करना तो हमें ही है। इंजीनियरिंग, शुरुआत की इंजीनियरिंग हमें ही करनी है। और नहीं करनी है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन के सीईओ ऑफिस में आ जाओ, हम और आप मिल के करेंगे। मैं दे दूंगा बंदे, आपके ऑफिस में आएंगे, बैठेंगे 24/7, आपके ही लोग के हिसाब से बैठेंगे। आप ही सैलरी दे देना, मेरे आईपी के लिए, मेरे इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे को 25% उनके सैलरी के ऊपर दे देना, मेरे स्वेट के लिए। अदरवाइज फिर हमें बैठ के करना। अब मेरे पास स्टेप्स आ गए हैं। अब इन स्टेप्स से, हर स्टेप या कपल ऑफ स्टेप्स को साथ में लेके, आई एम गोइंग टू राइट दी स्किल्स। सो क्या स्किल्स चाहिए इसके लिए? प्रोफिशिएंसी विथ इंडस्ट्रियल टूल्स, मेजरमेंट लेने आना चाहिए, मार्किंग करने आना चाहिए, शेपिंग में मेटल को शेप करने आना चाहिए, रूट वेल्डिंग आना चाहिए, फाइनल वेल्डिंग, टीआईजी, एमआईजी, आर्क वेल्डिंग आना चाहिए, न्यूमेटिक टेस्टिंग, एयर टेस्टिंग आना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोटोकॉल्स को पता होना चाहिए, यूज ऑफ प्रेशर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। अब मैं स्टेप्स के हिसाब से स्किल इन्वेंटरी लिख रहा हूं। ability to read and interpret technical drawing or blueprint, understanding of industrial safety procedure. Now I'm moving from steps to technical skill inventory. अब मैं सॉफ्ट स्किल इन्वेंटरी देखूंगा, क्या चाहिए? तो सॉफ्ट स्किल में अटेंशन टू डिटेल चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, पेशेंस एंड परसिवियरेंस चाहिए, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन चाहिए। अब इस टाइप का काम करने वाला, सो देयर आर स्टैंडर्ड 16 पर्सनालिटीज। अब इस टाइप का काम करने वाला आदमी की पर्सनालिटी कैसी चाहिए? तो यहां मुझे एक्सट्रोवर्जन नहीं चाहिए, मेरे को यहां इंट्रोवर्जन चाहिए। एक्सट्रोवर्जन रहेगा तो काम कम करेगा और बातें ज्यादा करेगा। इस वाले पोजीशन में मुझे इंट्रोवर्ट बंदा चल जाएगा, ये चाहिए मुझे इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट रहेगा तो वेल्डिंग कम करेगा और बातें ज्यादा करेगा। सो इंट्रोवर्जन चाहिए, सेंसिंग चाहिए, थिंकिंग चाहिए और जजिंग चाहिए। हम एक एक पूरा एपिसोड करेंगे जिसमें हम 16 पर्सनालिटीज को समझेंगे। आपको यहां पे यही पॉइंट देखना है कि मैं गलत पर्सनालिटी के आदमी को गलत जगह ना लगा दूं। जैसे आपने इंट्रोवर्ट आदमी को सेल्स में ले लिया, समझो। अब देखो क्या है, इंटरव्यू को जब आते हैं ना, तभी तो तोते जैसे रट रट के आते हैं। तो वो इंट्रोवर्ट भी है, तो इंटरव्यू में तो वो एक्सट्रोवर्ट लगता है। और अभी तो और डिफिकल्ट हो गया एआई के एआई जो आपकी जो वर्चुअल इंटरव्यूज होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि सामने एआई लगा के बैठा हुआ है, पढ़ पढ़ के बोलता है। सो इवेल्युएटिंग पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप पर्सनैलिटी तब इवेल्युएट करोगे जब आप उस पोजीशन के साथ, उस टास्क के साथ पर्सनैलिटी को मैप करोगे कि इस टाइप के टास्क करने के लिए किस टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए। सो ये जो आईएसटीजे जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? दे आर प्रैक्टिकल, फैक्ट ओरिएंटेड एंड रिलायबल। आईएसटीजे would thrive on a task oriented, structured process with clear steps and measurable outcomes. They are detail oriented and prefer to work with tangible real world data rather than abstract concepts. अब जितनी मेरी इस टाइप की प्रोसेसेस है ना, उनके लिए मुझे आईएसटीजे, इस पर्सनैलिटी के लोग चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है। आप कहोगे यार मेरे को फिटर को रिक्रूट करना है, मैं पर्सनैलिटी टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है। अब आप लोग और एक स्टेप आगे जाके कहोगे यार वो तो इंग्लिश में होता है मेरे वीडियो। थोड़ा आपको हिंदीकरण करना पड़ेगा, या हिंदी की भी टेस्ट अवेलेबल है। मैं जब ड्राइवर रिक्रूट करता था मेरू कैब्स कंपनी के लिए, मैंने पूरे वहां के, मेरे स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया 18,000 से भी अधिक ड्राइवर्स रिक्रूट किए। वहां भी हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते थे, वो तो पढ़ाई लिखाई से भी गड़बड़ थी। तो हमने एक पर्सनैलिटी टेस्ट बनवाई थी जो ड्राइंग बेस्ड थी। ड्राइंग ड्राइंग तो कर ही लेगा ना,
कैसे भी करो। सो साइकोमेट्रिक में देर आर डिफरेंट वेज। लेकिन अगर आपने पर्सनैलिटी को गलत पर्सनैलिटी को आदमी को अगर गलत जॉब पे लगा दिया ना, तो आप भी परेशान रहोगे और वो भी परेशान रहेगा। इसके सिर्फ मेंटल इफेक्ट नहीं होते, फिजिकल इफेक्ट भी होते हैं। गलत पर्सनैलिटी का आदमी गलत पोजीशन पे ज्यादा समय तक रहेगा तो उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसको हार्ट अटैक आएगा, 100% आएगा। बिकॉज उसकी नेचुरल जीने की पद्धति और वो जो अडेप्ट करके क्योंकि उस पोजीशन के लिए उसको अडेप्ट करके जीना पड़ेगा ना। जो आदमी इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट जॉब में है, कितना अडेप्ट करेगा। और आप जो नहीं हो वो अगर आप ज्यादा समय तक वो जीने की कोशिश करोगे तो मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल इंपैक्ट आने ही वाला। एंड अल्टीमेटली यू हैव टू राइट दी कल्चरल नॉन नेगोशिएबल्स। लाइक आपके कंपनी में हो सकता है कि हमारे यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कस्टमर सेंट्रिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड वी आर प्रोएक्टिव पीपल। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है। अब ये सारा डेटा जब आपके पास आएगा तब उस बेसिस पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर लीड फैब्रिकेटर। वी XYZ प्राइवेट लिमिटेड आर डायनेमिक manufacturing firm committed to excellence, driven by culture of precision, customer satisfaction, and continuous improvement. We believe in building not just product but a legacy of quality and reliability. Job summary: the lead fabricator is an action oriented, hands on expert responsible for end to end execution of our fabrication and welding projects. This role is for a meticulous and proactive professional who can lead by example, ensure the highest standards of quality, and champion our core values of process orientation, customer centricity, and proactivity. You will be instrumental in transforming raw material into finished, tested, and high quality components. Then we write key responsibilities. Then we write the threats that we are looking at. Then we write the skills that we are looking at. And then we write our cultural non-negotiable. And then this is a sample. अभी मैं ये सेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको एक ई बुक आएगा जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस और ये सैंपल दिया होगा, ताकि आप उसके बेसिस पे आपके कंपनी में प्रोसेस इन्वेंट्री ले सको। प्रोसेस इन्वेंट्री से आप स्टेप इन्वेंट्री ले लो। हर स्टेप को, हर प्रोसेस के स्टेप्स को आप सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, पर्सनालिटी, कल्चरल नॉन नेगोशिएबल सबके लिए कॉमन होंगे। एंड by doing this you will be able to create the first element of creation of job description. So मेरी अल्फा और बीटा सिस्टम में अल्फा is responsible for today, beta is responsible for tomorrow. I am a natural default beta system of my company, but because I am so overwhelmed and so much into today अल्फा that मैं बीटा नहीं कर पा रहा, तो मुझे सबसे पहले मेरे अल्फा को ठीक करना पड़ेगा। अल्फा को ठीक करना है तो मुझे इम्प्लीमेंटर्स चाहिए, एग्जीक्यूशनर्स चाहिए। एग्जीक्यूशनर्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे सही लोग लाने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे टैलेंट फैक्ट्री मॉडल फॉलो करना है। और टैलेंट फैक्ट्री मॉडल का पहला कंपोनेंट सोर्सिंग है, और उस सोर्सिंग का पहला कंपोनेंट जेडी है। और आज हमने जेडी कैसे बनाना इसके ऊपर बात की। फर्दर इंफॉर्मेशन you can connect to us. We will send you ebook. Be subscribed to our channel so that you continuously get information and inputs. आज का करने का क्या बोल है, चेरी कैसे बनाना, अब हमने बताया। अब आपको आज से मेरा अगला एपिसोड आने तक आपके जेडी बनाने का काम करना है। अगर श्रद्धा और सबूरी से करोगे तो होगा। एज अ फाउंडर आप नहीं करोगे तो ये कोई नहीं करेगा। और आपका जो थॉट इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, ये थॉट सिर्फ थॉट ही बना रहेगा। आप इंस्टीट्यूशनलाइज करोगे, इन्फ्यूज करोगे ना अपने विचार को,
तो वो विचार को इन्फ्यूज करने के लिए कुछ बॉडी चाहिए ना, कंटेनर चाहिए ना, जिस कंटेनर के अंदर डालोगे। अब वो कंटेनर बनाने का काम है, उसका पहला स्टेप है टैलेंट फैक्ट्री। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वी विल टेक क्वेश्चंस, वी आर वेरी क्लोज टू आवर जो भी हमें डिसाइडेड टाइम है, which will get over now. You have any questions, please raise your hands and Rajesh will unmute you. Okay. So I think there are no questions. हमारी लिंक्स हमारी लिंक्स चैट बॉक्स में हैं। हर चैनल पे जाके एटलीस्ट हमारे साथ टच में रहो। वेबिनार इज नॉट द ओनली थिंग। देर आर many ways in which we keep on sharing करने का क्या टिप्स with our people, so you can do that. मखदूम जी को कुछ बात करनी थी। भवन जी नमस्कार। नमस्कार कुंदन जी। बोला सर, बोलिए सर। Audible? Yeah, you're audible, very much Thank audible. you very much. And first compliment, you are looking very smart today. Thank you. And first of all, I want to ask how we can balance, alpha and beta. I'm sorry, your voice got cracked. How we can? Balance between alpha systems and beta systems. Always there is a toggle. Actually, sometimes we are in the alpha, sometimes we are in the beta, and it affects, it affects the organization. Very. So how to balance that? Because I think the enterprise need to, sometimes both, he has to play role at both places sometimes. Not always, but how to balance it? सर बैलेंस करने के लिए ना पहले तो अल्फा सिस्टम होनी चाहिए। ओके, आज के तारीख में ये रियलिटी है पवन सर आपकी हमारे जैसे एसएमई की, कि हम ही अल्फा है हम ही बीटा है। अब हम ही अल्फा है हम ही बीटा है तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है सर, अल्फा सिस्टम को सही बनाओ और मॉनिटरिंग का काम अपने हाथ में रख के अल्फा से रिजाइन कर दो। अब अल्फा से आप रिजाइन कब कर पाओगे, आप किसी भी चीज से रिजाइन कब कर पाओगे, जब आपको इनफ कॉन्फिडेंस है कि ये कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको आपकी बैंडविड्थ, आपकी पर्सनल बैंडविड्थ को खाली करना पड़ेगा ना। आपका अगर पूरा जो बैंडविड्थ है एज अ बबन मखदूम प्रमोटर अगर 100 है और 95 अल्फा से भरा हुआ है तो 5 ही बीटा में है, तो बैलेंस कैसे होगा। तो आपको यहां बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए अल्फा को आपको, जो हमने डेलीगेशन वाली बात की थी ना लास्ट इसमें, लेकिन डेलीगेशन कब कर पाऊंगा, जब मेरे पास राइट लोग है। तो सर इसको बैलेंस करने का तरीका यही है कि टैलेंट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करो, इंप्लीमेंटर्स को रिक्रूट करो, उनको डेवलप करो, और ये जो आपका 95% और 80% जो आप अल्फा में हो वो एटलीस्ट पहले 50% में आ जाओ। अब आप जब 50% में आओगे, अभी अल्फा बीटा बैलेंस करने के बाद आपको अल्फा और बीटा दोनों से भी निकलना है। साल भर के वेबिनार सीरीज में हम अल्टीमेटली वहां पहुंचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ना आपको अल्फा में बैठना है ना आपको बीटा में बैठना है। आप तो प्रमोटर होना, ओनर होना, ओनरशिप कस्टोडियनशिप में जाना पड़ेगा। लेकिन वो जाने के लिए मुझे पहले अल्फा, मुझे लगता है मेरी अल्फा है, अल्फा नहीं है, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अल्फा। एज अ एंटरप्रेन्योर मेरे पास जो नेचुरल एंडोमेंट्स मिली है ना, उनको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। तो मुझे ये जो नीचे वाली टीम है, या तो एग्जिस्टिंग टीम को मैं वापस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से लेके एंगेजमेंट तक लेके जाऊं, या जब मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूं तो सोर्सिंग से ही प्रोएक्टिवली सोचूं, सोर्सिंग से लेके एंगेजमेंट तक, रिसोर्स तक लेके जाऊं। अब ये जब करूंगा ना तो मेरी बैंडविड्थ जो है वो खाली होती जाएगी। 95% से 90 पे आऊंगा, 90 से 80 पे आऊंगा, 80 से 70 पे आऊंगा। 70 पे भी आ गए ना अगले 2 साल में सर, तो आपके पास बीटा में करने, बीटा तो दिमाग में चलते ही रहता है ना, प्रॉब्लम ये कर नहीं पाता हूं। गए 6 महीने में आई एम श्योर आपने नए मार्केट, नए प्रोडक्ट, नए वेंडर, नए क्या क्या सोचा होगा, और वो यहीं पे है।
क्योंकि ग्राउंड पे लाने के लिए मेरे पास जो बैंडविड्थ चाहिए काम करने की वो है नहीं, क्योंकि मेरी बैंडविड्थ अल्फा ने ले बैठी है। अब कई बार अल्फा में मैं मेरी बैंडविड्थ इसलिए भी देता हूं क्योंकि मैं वो जो मैनेजर लाना है, वो जो सीनियर पर्सन लाना है, उसकी जगह अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और उसकी सैलरी मेरे प्रॉफिट में दिख रही है। तो मैं कहता हूं बल्ले बल्ले, मैं तो 12% पे ऑपरेट कर रहा हूं। अरे 12% पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, तू तू 6% पे ऑपरेट कर रहा है। 6% खर्चा जो करना चाहिए वो अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। आपका टाइम दे रहे हो ना, उसकी कुछ वैल्यू है। वो जो पैसा बचता है वो कई लोगों के एबिटा में दिखता है, यू नो। तो सर सिंपल करने का क्या है, करने का है कि अभी टैलेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके मेरे अल्फा सिस्टम को इंडिपेंडेंट ऑफ मी बना लूं, ताकि मैं बीटा के ऊपर सिर्फ सोच नहीं पाऊं। सोचना बीटा आपके दिमाग में आज भी चल रहा है। कोई भी एंटरप्रेन्योर का बीटा बंद नहीं होता है, उसका दिमाग में बीटा चालू रहता है। वो बस से जा रहा है, उसको कुछ दिखा, अरे बोलता है ये अपने इंडस्ट्री में इस तरीके से हो सकता है, ये इसको मिक्स करूं तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। बीटा उसके दिमाग में चल रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वो अल्फा में अटका हुआ। तो बैलेंस करने का सर एक ही तरीका है, अल्फा को इंडिपेंडेंट बनाओ, उसके ऊपर एफर्ट डालो। Yes. Thank you very much. थैंक यू सर। Okay, good. So we will send a ebook by today evening. This ebook is supposed to be a guide. जो भी हमने आज बात की है उसको करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसके अंदर होगा, उसको यूज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड एंड दिस सीरीज। We would request you to spread the word in the market so that हमारे बाकी MSME फ्रेंड्स भी इसको अटेंड कर सके। And once again, thank you so much.